بتائیے آپ مزمل کی کیا لگتی ہے؟ میں اس کی بہن ہوں. آپ اس کی بہن ہیں. آپ ہی کی شادی ہونے والی ہے. تو آپ مزمل کے بارے میں بتائیے، وہ کیا گھر آتے تھے، کتنے ٹائم کے بعد آتے، پڑھائی کہاں سے ہوئی تھی؟ پڑھائی پہلے اس نے یہاں پہ 10th تک پڑھا ہی اسی گاؤں میں. تو اس کے بعد وہ گئے ہیں 11th 12th پلوامہ. پھر اس نے نیٹ کی پریپریشن کی ہے سری نگر میں. اس کے بعد اس کی سلیکشن ہوئی ہے جموں باترا میں. تو وہاں سے اس نے 5 ایئر کا کورس کیا کمپلیٹ. اس کے بعد اس نے وہاں سے انٹرنشپ بھی کی ہے. تو اس کے بعد آیا وہ یہاں سکم سورا میں. تو وہ وہاں پہ 2-3 سال تک رہا ہاؤس جاب کے لیے. پھر اس نے وہاں سے گیا وہ دہلی، یہی فرید آباد DNB پرائیویٹ کورس کرنے کے لیے. تو پھر اس نے ابھی یہ کمپلیٹ ہونے والا تھا. کتنا ٹائم ہوا ان کو فرید آباد؟ 3-4 سال ہو گئے. 3-4 سال. تو ابھی ان کا نام جو ہے ایک ماڈیول کے طور پہ جو ہے سامنے آ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ویسا کچھ ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک شاکنگ نیوز ہے اس ٹائم. مطلب ہمارے ماں باپ نے جس طریقے سے ہمیں پڑھایا، یہاں اس لیول تک پہنچایا، مطلب یہ اس کو پتہ ہے. مطلب ہمارے ماں باپ نے کتنا محنت کیا ہے مطلب زمین پہ. مطلب ہم سب زمینداری کر رہے ہیں یہاں پہ. میں خود کر رہی ہوں. میں ایک ڈاکٹر بن گئی لیکن میں خود کر رہی ہوں زمینداری یہاں پہ. تو پھر ہمیں اس طریقے کا مطلب کچھ اندیشہ نہیں تھا مطلب ایسا ہونے والا ہے. جب ہمیں یہاں پہ ریڈ بھی پڑی نا، تو اب بھی ہمیں یہ نہیں تھا کہ مطلب ہمارا بھائی انوالومنٹ ہے اس میں، مطلب اس کی انوالومنٹ ہے اس میں. یہ بھی نہیں ہمیں پتہ تھا. تو پولیس نے کب بتایا آپ کو کہ آپ کے بھائی کو گرفتار کیا؟ پھر ہم نے جب اس نے نہیں بتایا. یہ لوگ بول رہے تھے کہ کچھ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے، کچھ ایسا. لیکن پھر ہم نے شام کو دیکھا تو پھر ہمارے بھائی کا کال نہیں جا رہا تھا یہاں سے، کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. تو پھر اس کے بعد ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوئی. پھر ہم نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. تو پھر ہم صبح گئے وہاں تھانے پہ. تو انہوں نے بولا آپ کا بھائی وہاں پانتھا چوک پہ. تو آپ کو پھر پتہ لگ گیا کہ وہ گرفتار ہو گیا. تو ایسا کچھ کب سے آپ کا سمپرک جو ہے ٹوٹا؟ لاسٹ کال کب؟ ہاں، لاسٹ کال ہماری تھرسڈے سے پہلے ایک دن. ہاں، تھرسڈے سے پہلے ایک دن اس نے کال کی تھی. تھرسڈے صبح کال نہیں ہوئی. پھر نیچر کیسا تھا؟ مطلب بہت اچھا. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک سیدھے انسان تھے، صرف پڑھائی پہ دھیان دے رہے تھے. مطلب ہم جو بہن بھائی ہے اس کے، تو وہ ہمیں صرف بول رہا تھا کہ پڑھائی کرو، اتنا ٹائم دو پڑھائی پہ، ایسے پڑھو ویسے پڑھو، بس اتنا کا مطلب ہمیں اس کے ساتھ یہ تھا. کیا کوئی FIR ہے مزمل کے خلاف؟ ہم نے کبھی ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا ہے یہاں پہ. مطلب اتنے سال ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم نے کبھی کچھ نہیں دیکھا ہے. مطلب کوئی FIR یا کچھ آرمی یا کچھ یہ ملٹنسی کچھ بھی نہیں دیکھا ہے. ہم یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اسی لیے یہ شاکنگ نیوز ہے ہمارے لیے. ہم پرو انڈینز تھے. ہم ہی وہ گھر ہے جس نے ووٹ ڈالے تھے 2008 میں، اور ہمارے گھر کے اوپر پتھرا ہوا تھا اس ٹائم. آپ کو ابھی لگتا ہے کہ بھائی، کیونکہ آپ کا، مجھے لگتا ہے یہ اس پہ الزام لگایا گیا ہے. اس کا پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. فورسفلی بھی ہو سکتا ہے، اس کو فورس کیا ہوگا، یا کسی نے اس کو بولا ہے کہ نہیں یہ انوالو ہے اس میں، یا اگر ان کو اس کے وہاں کچھ ملا ہوگا، انہوں نے کیوں نہیں، مطلب ہم کیسے یقین کریں؟ انہوں نے کیوں نہیں اس کا یہ ویڈیو بنایا کہ یہ پہلے ہم جائیں گے اندر، جیسے بناتے ہیں ویڈیوز. انہوں نے کچھ نہیں. ہم کیسے یقین کریں کہ نہیں یہ اس میں انوالو ہے؟ کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے اگر کیونکہ قانون پہ سب کا بھروسہ ہے، آپ کا بھی بھروسہ قانون پہ ہے، قانون کے حساب سے اگر آپ کا بھائی دوشی پایا جاتا ہے تو کیا آپ مانگ کریں؟ ہاں، اگر قانون کے حساب سے دوشی پایا جاتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو سچ ہے، چاہے وہ بڑا سا بڑا آفیسر کیوں نہ ہو. یہ سچ ہے. ہمارے ساتھ مزمل کے بھائی ہے. آپ بتائیے نام اپنا اور مزمل کی گرفتاری کے بارے میں آپ کو کب پتہ چلا؟ سر تھرسڈے کو. ابھی 14 دن ہو رہے ہیں. 12 13 14 دن ہو رہے ہیں. جی سر. آپ کو پتہ چلا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے؟ جی سر. جی سر. تو آپ کو پولیس نے سوچت کیا تھا؟ پولیس آئی تھی ادھر. جی سر. سرچ کرنے کے لیے؟ ہاں سر. کیا تلاشی لے لی بس. کیا کیا چیزیں پھر یہاں سے وہ لے گئے؟ فون. ہاں سر. میرا. آپ کا کوئی فیملی ممبر بھی ابھی گرفتار؟ جی سر. میرا بھائی، بڑا بھائی گرفتار ہے. جی سر. تو آپ کو لگتا ہے بھائی کا نیچر کیسا تھا؟ جی سر، وہ بہت ہی رحم دل تھا. آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہو. وہ غریب، وہ رحم دل تھا. جی سر. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ماڈیول کا حصہ ہے، جیش کے ماڈیول کا حصہ تھا وہاں پہ فرید آباد میں. جی سر، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. وہ 2011 سے دو بار سال میں آ رہے ہیں گھر. 3 بار کہیں مشکل ہی. پچھلی بار وہ آیا تھا جب ہمارے بابا کی سرجری تھی.
उसकी छठी सर्जरी थी मेरे बाबा की। यस सर। आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई थी मुजम्मिल के साथ? जी सर, हर दिन हो रही थी पिछले थर्सडे से, जब से ये एलिगेशन मतलब उसको गिरफ्तार किए हैं तब से नहीं हुए। तब से नहीं हुई? नहीं जी सर। पुलिस ने आपको बताया कि गिरफ्तारी हुई है उसकी? पुलिस ने बोला है वो हमारे पास हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं। जी सर। बाकी अभी तक आपको मुलाकात कुछ नहीं दी गई? नहीं सर, कोई से बात। फैमिली मेंबर्स के बारे में बताइए, कितने फैमिली, क्या फैमिली है मुजम्मिल की? जी सर, हम 3 भाई हैं, एक बहन है, माँ बाप हैं और बड़े भाई की वाइफ है और उसका बेटा है छोटा। अभी किसको आपके घर से जो है पुलिस ने हिरासत जी में सर, लिया? बड़ा भाई, उसका फ़ोन भी लिया है। और कोई चीज़ ली है क्या यहाँ घर से? मुजम्मिल के कुछ चीज़ों में से कोई चीज़? नहीं नहीं नहीं। कोई चीज़ नहीं ली है। आपको क्या लगता है ऐसी घटना में उसका रोल हो सकता है कुछ? जी सर, नहीं नहीं, हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। हमारे पास कोई केसेस नहीं है, आप देख सकते हो पीछे से, आप पुलिस से भी मालूम करवाओ ये कैसा घर है। केस कोई नहीं है? कोई केस नहीं है, कोई कुछ भी केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे घर की। जी सर। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये कुल मिलाकर जो है ये कहा जा सकता है कि कोई भी केस जो है मुजम्मिल के ख़िलाफ़ पुलिस में नहीं है। इनका कहना है कि इनको खुद भी पता नहीं है कि वो इस मामले में कैसे डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आया और किस तरीके से उन्हें गिरफ़्तार किया गया। अभी भी जो है डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो पुलिस की हिरासत में है और लगातार उनसे तफ्तीश चल रही है। कैमरामैन सिद्ध मुर्तज़ा के साथ मेहरा जमा, TV9 भारतवर्ष, पुलवामा। आप डॉक्टर मुजम्मिल के पापा हैं, तो क्या आपको पता है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है? वो उस वक्त तक पता नहीं है, उसने इधर छापा मारा सर, इसीलिए 2 दिन के बाद पता लग जाएगा। हम गया उधर है ना थाने में, पुलवामा थाने में गए, उसने बोला तूने कल छापा मारा हमको, उसने बोला तू पांथा चौक जा, वो उधर है। हम अभी तक भी पता नहीं है वो गिरफ्तार है कि नहीं, उसने मुलाकात भी नहीं दिया सर। आपके बेटे का नाम क्या है और कितने भाई है वो टोटल? हम 3 भाई है मेरे को, मेरे को 2 भाई और है। बेटे का नाम है मुजम्मिल, मोहम्मद अब्बास, मुजम्मिल तो आज़ाद शकील, बस सर। तो अभी पुलिस ने कितने लोगों को आपकी फैमिली में से गिरफ्तार किया है? 2 गया गिरफ्तार, एक मुजम्मिल और मेरा अब्बास का। अब्बास? हाँ। अच्छा, 2 बेटे आपके अभी हाँ पुलिस सर, से गिरफ्तार। हाँ सर। तो यहाँ पे चेकिंग वेकिंग हुई क्या? हाँ, पूरा चेकिंग किया पहले ही सर। हाँ सर, पूरा चेकिंग। उसने लैपटॉप भी लिया सर, 12 दिन हो गया सर, फ़ोन भी लिया सबको। मुजम्मिल आते थे यहाँ पे? नहीं सर, कितने टाइम से नहीं आए थे? वो 1 साल में 2 बार आता है। हाँ, मैंने सर्जरी जून में किया, उसी टाइम आया। हाँ सर। बात होती थी फ़ोन पे उनके साथ? हाँ, बात होती थी। हाँ, बात होती थी। तो क्या बताते थे मम्मी खास? भी बात करता है, उसका मम्मी भी बात करता है, वही का पढ़ने के बात है, मेरे सब बच्चों को पढ़ता है। मैंने खुद ये किया, मैंने इसीलिए ये पढ़ रहा है। मैंने शोर में 99 में सर्जरी किया, उसी ने मैंने शो किया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा खुद को। आपको लगता है मुजम्मिल ऐसा कर सकता है? नहीं सर, मैंने तो उसको कोई नहीं, हम 30 साल हो गए ना मिलिटेंसी को, हम पक्का इंडियन है। तो लोगों को सुनो ये इंडियन है कि नहीं, ये पाकिस्तान है। पत्थर वत्थर है ना, हम पत्थर भी खाया इसीलिए इंडिया के लिए। तो अभी वो गिरफ्तारी हो गई है, मुजम्मिल को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे पुलिस आई थी, क्या क्या चीज़ें ले गई? आपसे क्या पूछा? उसने लिया लैपटॉप और फ़ोन लिया सर। हाँ, वो दूसरे छोटा का बेटा का है ये, वो भी पढ़ता है नीट को। हम अभी दक्षिणी कश्मीर के काजीगुंड अनंतनाग में है और आप देख सकते हैं कि ये जो मकान हमारे पीछे है, ये डॉक्टर अदील जो कि सहारनपुर में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस यानी श्रीनगर पुलिस द्वारा पकड़े गए थे। बता दें आपको कि डॉक्टर अदील जो है ये वो डॉक्टर थे, या कह सकते हैं कि वो डॉक्टर बने आतंकी जो कह सकते हैं वो थे, जिन्होंने कहा जा सकता है कि श्रीनगर में नौगाम इलाके में पोस्टर्स चस्पा किए थे। और उसके बाद से जैसे ही CCTV में इनका फुटेज आया था, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने वो फुटेज खंगाला था और उसके बाद से ही कहा जा सकता है कि जो अदील है उसका पर्दाफाश हुआ था। बता दें आपको कि डॉक्टर अदील जो है वो कहीं ना कहीं जो है सहारनपुर से फिर जो है वो
वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए, उसके बाद से उनके खुलासे पे ही जो है डॉक्टर अदील ने अनंतनाग के एक हॉस्पिटल के कैबिन से अपनी एक कैबिन से जो एक खुलासा किया था और वहाँ से जो है एक AK-47 पकड़ी गई थी। और बता दें आपको कि जो अभी सुरक्षा एजेंसीज़ के तफ्तीश में सामने आया है, डॉक्टर अदील के खुलासे पे ही जो है कहीं ना कहीं फिर फरीदाबाद में जो है डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे नेटवर्क को जो है जो पर्दाफाश किया गया। तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर अदील पहली कड़ी थी इस पूरे नेटवर्क को बस्ट करने की, और कहीं ना कहीं यहाँ से ही कहा जा सकता है कि वो जो कड़ी थी वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी। डॉक्टर अदील ने तब जो पोस्टर्स लगाए थे जैश के प्रचार के, वो कहीं ना कहीं जो है श्रीनगर पुलिस ने उनको जो है खंगालने की कोशिश की थी। उसके बाद से डॉक्टर अदील का चेहरा सामने आया था और उसके बाद डॉक्टर अदील की बारे में पूरी जानकारी जो है वो एकजुट करके श्रीनगर पुलिस ने जब पूरी तफ्तीश की तो पाया कि वो सहारनपुर में एक डॉक्टर के हैसियत से काम करता है, एक पढ़ाक जो एक शिक्षक के हैसियत से काम करता है, और उसके बाद से कहा जा सकता है कि उसको जो है वहाँ से पकड़ा गया था। तो कुल मिलाकर अभी ये पूरी परत दर परत जो है डॉक्टर अकील के बाद खुलती जा रही है, और आज भी जो है पुलवामा में एक और डॉक्टर को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे अभी भी जो है तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ मैं रजामत TV9 भारतवर्ष, काजीगुंड, अनंतनाग। मैं भाभी लगती हूँ। तो जो कल से पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद, कहा जा रहा था कि ये तारिक है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो दो। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है। हमारे और कोई गाड़ी तो नहीं। कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है, तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे, और कुछ नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने बोला था उनको, इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली दो हैं। तो फिर उन्होंने बोला कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना तो हम छोड़ देंगे। ये आमिर जो है जिनकी पिक्चर कल से वायरल है, ये क्या काम करते हैं? प्लम्बर है। ये कश्मीर में ही होते हैं या बाहर भी? कश्मीर में, हाँ, बस और आउटसाइड में नहीं।